Okay. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible. You can hear me. Just say yes so that I know. Okay, I'm Dr. Sunita Godara, 1992 Asian Marathon Champion. First of all, I would like to thank PEFI, who has given me this platform to interact with you all. As far as my profile is concerned, I won Asian gold medal in 92, and before that and after that, in 26 countries, all 4 continents, I won 25 gold at the international level, 13 silver and 12 bronze. I've done 200 international marathons, 76 full marathons and 123 half marathons, 42 kilometers and 21 kilometers and few 10Ks. This is my background of 30 years of international running, and since then I was coaching also, because in 1987 I did my NIS diploma from Sports Authority of India, Patiala, and 1980 I did my yoga diploma. So how I connect with the physical education? In 1980 I came to Delhi and I was a sports teacher in Mothers International School, and I lived there as a sports teacher plus hostel warden for about 6 years before I got married in 87. When we talk about scientific approach to fitness and running, so first I will take fitness and then I will take running performance. And when we say scientific approach, then what is this scientific approach? You must be hearing so many good lectures from sports scientists, from nutritionists, from doctors, professors. So when I was hearing them, like when I heard Dr. Anjum Marshall the Mind, when I heard obesity lecture, when I heard nutrition lecture, when I heard lecture on coaching from Dr. Bansal, and when I heard Chetan speaking about love yourself with positive lifestyle, I really tell you, I was feeling, wow, that's great, I lived this life. When I was a fitness runner, into fitness and lifestyle runner, you can say, I'm a jogger turned marathoner. And after that also, when I was a performer, achiever and winning international marathons. So when we talk about scientific approach, knowledge that has characterized the development of science, and with very careful observation, with proper observation, experiments and measurement test and testing, then when we have experimental findings, I'm the real example of that, I tell you. And the scientific method is not one recipe, it is a cycle, ongoing cycle. So for scientific approach, you may differ from one person to other. And I really, when I was a jogger doing marathon, I was doing 3 hours 30 minutes full marathon, 1 hour 25 minutes and half marathon, but I was just a jogger because I used to love running and I was doing it. And then in 87, with the help of my husband, who was my guide, mentor and fitness scientist, we started developing the scientific approach towards marathon running. And then I started, I worked on my body fat composition, I worked on my workouts, I worked on my diet pattern, the nutrition pattern. And then I was declared in 1988, when I cut down my 40 minutes in full marathon in Pune International Marathon, I was declared as the most improved marathon runner of India. So this is all scientific approach. First I will take fitness.
So when we talk about fitness scientific approach, what it could be, because I'm very practical and I'm not a professor. I'm a PhD doctor, but I'm not a professor. So I will talk in a very normal, talking terms. So when anybody wants to go into fitness and wants to apply the scientific approach, what should you do? For fitness, we when I'm talking in formula, so I will tell you, learn. LEARN. L is for positive lifestyle, which you have heard from so many speakers. So that is the first and foremost thing, positive lifestyle. And then comes regular exercise. This is for fitness only, huh? And then comes positive attitude. If you don't have positive attitude, you cannot continue your things in a proper manner. Then comes rest and recovery. It's very important. And N is nutrition. Proper nutrition with proper body composition. So when you are getting into fitness, you have to work on these segments. And when formula is fit, and you are fit. Now, when we are talking about fitness, and from fitness you want to improve your timings and all. And once you go into timings or say performance, even the lifestyle runners, because I'm talking about running. Everybody has champion inside heart, and they want to improve their timing. No matter what timing they are doing, maybe they don't want to go into a competitive performance running, elite running, but they all want to improve their timing. So those who want to improve their timing, what all they should follow. So there are points to remember. Points like the biggest risk of exercise is what? The biggest risk of exercise is not doing exercise, first of all. So we have to have disciplined routine. सभी को मेरा नमस्कार, पैफी को मेरा धन्यवाद गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप हेलो करते जाइए, पैफी आपको ग्रीट करते जाएंगी. उसके बाद 15 मिनट्स, जो लास्ट के 15 मिनट्स होंगे, उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्योंकि मैं बोलते हुए आपको ना तो देख पा रही हूँ, ना आपका जो सेंटेंस है वो पढ़ पा रही हूँ. तो सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग. और हम बात कर रहे हैं अभी लिटिल बिट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू फिटनेस. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर. जब हमने ये जो बिग रिस्क है नॉट डूइंग एक्सरसाइज, इसको ख़त्म कर दिया और एक्सरसाइज में घुस गए, तो फिटनेस के लिए वी हैव टू स्टार्ट स्लोली. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू योर बॉडी. हमारी बॉडी, हमारा ये थर्मोस्टेट इतना बढ़िया काम करता है. बॉडी इज मशीन, बट इट हैज़ थर्मोस्टेट विच गिव्स यू मैसेजेस. अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो आपको मैसेज देना शुरू करता है. तो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी कि वो क्या कहना चाह रही है आपसे. अपनी बॉडी का जब सुनेंगे आप, तो आप फिटनेस में कभी गलती नहीं करेंगे. Listen to your experts, your coaches, your teachers, and when you are in performance, elite performance, then listen to your scientist, sports scientist. मैं अपने टाइम में मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं 61 ईयर्स की हूँ, और मैं 20 ईयर्स की थी जब मैंने इस मैराथन रनिंग में एज अ जॉगर शुरू किया था, और 24 की एज में मैंने पहली मैराथन विन की थी, नेशनल चैम्पियन बनी थी इंडियन ओपन ट्रक मैराथन में. और जब 87 में मैंने साइंटिफिक ट्रेनिंग शुरू की, प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू की, और मेरा टारगेट बन गया कि मुझे मैराथन्स में टाइमिंग भी रिड्यूस करना है और इंटरनेशनल विनिंग में भी जाना है. उस वक्त मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की बातें सुनती थी, उनके साथ बैठती थी. मेरे टाइम के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट मेरे हम उम्र हैं, तो उनके साथ, और वो इस बात को एंडोर्स भी करेंगे कि मैं नेहरू स्टेडियम में, पटियाला में, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के साथ डिस्कस करना, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करना, अपने कुछ एक्सपीरियंस बताना. क्यों मैं, जैसा कि आपने देखा होगा, कल भी स्पोर्ट्स साइंस स्पीकर आए थे, और एक ओबेसिटी के जब आए थे तो उन्होंने भी ये बताया था कि फैट लॉस तो मुझे करना ही था. मैं 54 kg की थी, बढ़िया दौड़ रही थी, 3 hours 30 minutes की मैराथन दौड़ के विन भी कर रही थी इंडिया में,
लेकिन इंटरनेशनल विनिंग के लिए मुझे अपना फैट कॉम्पोजिशन कम करना था। फैट कॉम्पोजिशन यानी कि फैट परसेंटेज कम करने के लिए जिस तरह से मुझे कैलोरी इनटेक लेना था, वो मेरे कैलोरी कंजम्पशन से इनटेक कम आधा होता था। मैं 5'4" हाइट है मेरी, तो अगर एज अ मैराथन रनर मैं कहूँ कि मैं रोज़ 20-25 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज दौड़ रही हूँ, तो मेरी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2500-2800 है। और फॉर्मूला आपको उन्होंने बता ही दिया था, तो वो आपने नोट भी कर लिया होगा। मैं उस टेक्निकल पार्ट में नहीं जाना चाहती हूँ। तो जब मुझे वेट लॉस करना है, वो भी बहुत स्लोली करना है, एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। मैंने 1 साल में अपना 9 किलो वजन कम किया था। तो मैं 22 फैट परसेंटेज से 11 फैट परसेंटेज पे आई थी। 54 केजी से 46 केजी 45 केजी में आई थी। तो उसको करने के लिए कैलोरी काउंटिंग बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, कैलोरी काउंटिंग भी करनी है, 1000 कैलोरी कम भी करनी है, सिर्फ 1500 कैलोरीज लेनी है पूरे दिन में, और उसमें न्यूट्रिशन भी पूरा होना चाहिए। तो ये एक तपस्या थी, और इस तपस्या को करने के लिए मुझे अपना जो भी कुछ मैं खा रही हूँ उसमें न्यूट्रिशन कितना है और कैलोरी कितनी है, वो सारा ध्यान रखना पड़ता था। तो इस तरह से मैंने अपना फैट कॉम्पोजिशन सॉलिड कम किया, परसेंटेज कम किया। और जब मैं 45 की हो गई, एक मेरे बेडरूम में मेरे सामने रोज़ा मोटा, जो 1988 ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसका फोटोग्राफ, बड़ा सा पिक्चर पोस्टर लगा रहता था। मुझे उठना है और उसी को देखना है, क्योंकि मुझे उस बॉडी फ्रेम में ही रहना है हमेशा। तो वो थी 44-45 केजी में उसका आइडियल वेट था, तो मुझे उसमें रहना है। तो रोज़ सुबह उठ के मुझे उसको देखना होता था। और माइंड को टफ करने के लिए योगा है, मेडिटेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन है, ये सब करते थे। तो हम बात कर रहे थे अभी फिटनेस की। तो फिटनेस में साइंटिफिक अप्रोच लाने के लिए आपने स्लोली स्टार्ट किया अपनी बॉडी को। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर कोचेज एंड एक्सपर्ट्स, एंड देन टेक केयर ऑफ द इम्पैक्ट। अगर आप सिर्फ फिटनेस में हैं तो उस इम्पैक्ट का बहुत ध्यान रखना है जो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, फिजिकली भी, मेंटली भी। फिटनेस में जाना है, फिट होना है, इसके लिए मेंटल स्ट्रेस लाने की ज़रूरत नहीं है और फिजिकल स्ट्रेस भी लाने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही करें जितना ज़रूरी है। आप रनिंग में हैं, जंपिंग इवेंट में हैं, या आप वेट ट्रेनिंग में हैं, आप स्विमिंग में हैं, साइकिलिंग में हैं, जिमिंग में हैं, या आप रोइंग में हैं, या आप जुम्बा में हैं, आप क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी गेम में, किसी में भी हैं, आपको अगर सिर्फ फिटनेस के लिए करना है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली और मेंटली फिट रहकर आपने अपना फिटनेस का प्रोग्राम करना है। अब एक इसमें सोशल फैक्टर बहुत आता है। सोशल फैक्टर में क्या कर रहे हैं कि ग्रुप एक्टिविटी हमेशा बहुत अच्छी होती है। ग्रुप में जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वो फुल ऑफ फन होती है, वो सेफ होती है, मोर सेफ एंड मोर एन्जॉयबल, मोर कॉम्पिटिटिव। क्योंकि किसी भी लेवल पे जब आपने अपने लेवल को बेटर करना है तो उसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो होनी चाहिए। तो ग्रुप एक्टिविटी हमेशा अच्छी होती है। सेकेंडली, आप इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप और कूल डाउन, वो हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि सीधे भाई फिट होना है तो सीधे साइकिलिंग के लिए निकल गए या सीधे रनिंग के लिए निकल गए। जो भी एक्टिविटी आप करते हो उसके पहले अपना प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन, तो आपने यही अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनर, कोच। ऑलवेज चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ योर कोच। जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनके पास तो उनको तो अच्छा है कि उनको ऑलरेडी क्वालिफाइड कोचेस और प्रोफेसर्स मिले हुए हैं, फिजिकल डायरेक्टर्स मिले हुए हैं। लेकिन जो प्राइवेट कोचिंग में जाना चाहते हैं या प्राइवेट ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि जिस भी ट्रेनर के पास जा रहे हैं उसके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं, उसके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अगर वो नहीं है तो उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, उसने जो भी कोचिंग पहले दी है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, ये सारा कुछ ध्यान में रखना है। तो अब हम फिटनेस के लास्ट पायदान पे आते हैं। वो है कि चाहे वो कोच हो, चाहे वो एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे करें। तो उसके लिए बस मैं एक बहुत प्यारा सा आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, ध्यान से सुनना। शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और जीवन में बहुत सारा प्यार,
और अपमान पीने की शक्ति रख के हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। और सच कहा है किसी ने कि जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ में वो सिर्फ 10% होती हैं। जब हम अपनी टोन को ख़राब कर देते हैं तो उसकी वजह से वो 100% हो जाती हैं। तो अगर हमने अपनी ज़बान पर, अपनी टोन पर काबू पा लिया, इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर टोन, देन द प्रॉब्लम इज़ ओनली 10%। और 10% प्रॉब्लम को तो यूं ही हम गुजर जाएंगे, उसको संभाल पाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव लाइफस्टाइल करके आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जब हमने ये बात कर ली तो अगर आप रेगुलर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, रेगुलर रनर हैं, रेगुलर मैराथन रनर हैं, तब आप क्या साइंटिफिक अप्रोच लेंगे? मैं अभी इस समय जितने एलीट रनर्स हैं या एलीट स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका तो जो एक सिस्टम होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, स्पेसिफिसिटी होती है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे उनका ध्यान देना होता है, उनका एक पीरियडाइजेशन होता है, उनकी साइक्लिसिटी होती है, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग में डिफरेंट मेथड्स होते हैं और प्रोग्रेशन होता है, ओवरलोडिंग होती है। वो सब कुछ एलीट के लिए है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स, या अब मैं रनिंग पे आ जाऊं क्योंकि मैं रनिंग परफॉर्मेंस के साथ में साइंटिफिक अप्रोच को ले रही हूं, तो ऐसे रनर्स जो एस्पिरेशन है उनकी कि मैराथन करनी है, एस्पिरेशन है क्रॉस कंट्री में जाना है, उनकी एस्पिरेशन है कि उनको फुल मैराथन में जाना है, या उनको 10 किलोमीटर का अपना बेस्ट टाइम देना है, ऐसे लोग, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन, या आपके कांटेक्ट में आप जो टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स हैं, उनके कांटेक्ट में जब ऐसा कोई खिलाड़ी आता है जो अपना टाइम इंप्रूव करना चाहता है, तो वो क्या साइंटिफिक अप्रोच रखे? एक तो वो जो मैंने कहा था कि सबसे पहले तो देखिए उसका बॉडी कंपोजिशन सही है कि नहीं, और उसका न्यूट्रिशन सही है कि नहीं, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसमें भी मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, और उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए बड़ा सिंपल सा है। हम हमेशा कहते हैं वी हैव टू हैव वैल्यूज इन लाइफ, वी हैव टू हैव वैल्यूज इन स्पोर्ट्स। यस, वी डू follow all these things, then only we become a successful sports person. तो वैल्यूज में क्या करना है? V is victory as birthright. Victory is my birthright. एक फिटनेस लेवल से अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है, तो जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि विक्ट्री इज माई बर्थ राइट, आप इम्प्रूव नहीं करोगे। तो अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो होना चाहिए वैल्यूज का वी, विक्ट्री इज माई बर्थ राइट। ये सोच लिया, अब इस पर हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेहनत, वो सब तो करनी है। टैलेंट भी होना चाहिए, ऑफ कोर्स, वो तो है ही, वो तो हम टेस्ट करते हैं, उन सब से पता भी चल जाता है कि इसमें वो टैलेंट है या नहीं। तो अब हम वी की बात कर ली, फिर हम आ गए ए पे, बी अटेंटिव। जब आपको परफॉर्मेंस देनी है तो हमें अटेंशन पे करनी होगी जो हमारा ट्रेनर कह रहा है, हमारा कोच कह रहा है, हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, हमारा डॉक्टर कह रहा है, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कह रहा है, और हमारा फिजियोथेरेपिस्ट कह रहा है, वो हमें सुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात बताती हूँ, इंजरी हो जाती है ना, डॉक्टर की नहीं सुनते, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की नहीं सुनते, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लेते, एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, स्ट्रेचिंग ठीक से नहीं करते, और फिर कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है। जब आपके हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है तो उसके बाद आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को, बहुत हो रहा है, क्रॉनिक हो गया है, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के पास, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के पास में अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करना पड़ता है और उसकी एडवाइस माननी होती है, तभी जाकर प्रॉब्लम भी ठीक होती है और आप भी ठीक होते हैं। अब जैसे कुछ एथलीट्स हैं, वो क्या करते हैं, आज हमारे क्लब में आ गए, आज स्पीड वर्क कर लिया, कल स्टेडियम पहुंच गए, वहाँ पर भी स्पीड वर्क कर लिया, रियलाइज ही नहीं करते हैं कि 2 दिन आपको फास्ट वर्कआउट नहीं करना है। तो ये सारी बातें आपको कोचेस बताते हैं और उनकी बातों को अमल करना होता है। और कोचेस को भी ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपके पास में आपका एथलीट सिर्फ 3 बार आ रहा है तो 3 बार वो कहाँ और जा रहा है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है हमारा एल, लर्निंग। इट्स अ प्रोसेस, नॉट द डेस्टिनेशन। अब जैसे मैं भी रोज पैफी की वेबसाइट पे
पैफी के फेसबुक लाइव पे जाकर जो कुछ सुन रही हूँ उससे बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो हम जो फिज़िकल एजुकेशन में हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स टीचर हैं, चाहे हम फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, चाहे हम फिज़िकल डायरेक्टर कॉलेज में हैं, चाहे हम स्टेडियम में कोच हैं, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते, अगर मैं सोचूं कि मैं योगा क्वालिफाइड हूँ, मुझे सब कुछ योगा में आता है, मैं एनआईएस क्वालिफाइड हूँ, मेरे को एथलेटिक्स में मैराथन में सब कुछ आता है, मैं एशियन चैम्पियन हूँ, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं है। सभी जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम हमेशा सीखते रहते हैं। अरे वो तो छोड़ो, हम अपने खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होता है। वो जब आपको अपनी इंजरी के बारे में बताता है, कैसे हुआ, कब ठीक हुआ, क्या हुआ, हमें पूरे टाइम ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। और इसी तरह से हमें दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जो आजकल तो हम थैंक्स टू पैफी कि उसने इतने सारे एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है। इसके बाद आता है योग। तो जो मैंने पहले कहा था कि जो यूनिटी है, हाँ, जो ग्रुपिंग है, इट इज़ ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो हमेशा यूनाइट रहें। कोचेस का भी, कोचेस आपस में शेयरिंग करें। खिलाड़ी जो हैं वो अकेला अकेला, अब जैसे मैराथन रनर क्या होता है ना, लोनलीनेस ऑफ अ मैराथन रनर इज़ अ वेरी वेरी करेक्ट सेइंग। बट इफ ऑल द मैराथन रनर्स, ऑल द रनर्स अगर वो ग्रुप बना के दौड़ना शुरू करेंगे तो वो बेटर कर पाएंगे। और ये मेरा पूरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने जब खुद भी किया तो ग्रुप बनाया अपने से। मैं नेशनल लेवल की थी तो मैं स्टेट लेवल के बॉयज़ को मैंने फ्री कोचिंग देनी शुरू की और उनको अपने साथ में मैराथन ट्रेनिंग कराई, स्टेट लेवल के बॉयज़ को। तो उससे मेरा ग्रुप बन गया। और अभी भी जब मैं क्लब में, मैं हमेशा सभी रनर्स को ये बताती हूँ कि आपको ग्रुप में ट्रेनिंग करनी चाहिए। अकेले आप लॉन्ग रन में चले गए, अकेले आप स्पीड वर्क कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर अकेले अकेले करने से क्या होता है, आपको अंधों में काना राजा, वो वाली बात, वो वाली फीलिंग आ जाती है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि दूसरे अगर आपसे बेटर है। हाँ, और हमेशा साइंटिफिक अप्रोच लेनी है ना, तो अपने से थोड़े से बेटर रनर्स के साथ, अपने से थोड़े से बेटर स्पोर्ट्समैन के साथ में गेम या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, वो अपने से बेटर के साथ में करोगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि एक तो मोटिवेशन भी रहता है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहती है, और अपने से बेटर वालों से थोड़ा सीखने को भी मिलता है। उसके बाद हम आते हैं ई पे। वैल्यू में जब ई आ जाता है तो वहाँ पर एथिक्स आ जाते हैं। और हमारे स्पोर्ट्स में जब एथिक्स की हम बात करते हैं तो अनएथिकल क्या है, डोपिंग, चीटिंग, शॉर्टकट, एज फ्रॉड, ये सब अनएथिकल है। तो एज अ टीचर हमें सबको, अपने खिलाड़ियों को यही बताना है, और एज अ खिलाड़ी हमें ये ध्यान रखना है कि एथिक्स के साथ रहे, डूज एंड डोंट्स को फॉलो ठीक से किया, हमने अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स रखे, तब हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के साथ साथ और एक बेटर स्पोर्ट्समैन बन पाएंगे। अदरवाइज मैं सच बताऊं, मैंने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो जब डोपिंग में पकड़ाते हैं उसके बाद उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो उनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है समाज में, हमारे स्पोर्ट्स समाज में शक की निगाह से लोग देखने लगते हैं उनको। तो जितने क्लीन रहोगे उतना बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं, जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल टिपिकल साइंस में तो जा नहीं रही हूँ, है ना। नॉर्मल वे में एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो हर कोच को, हर टीचर को ध्यान रखना चाहिए। अब एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं रनिंग की बात कर रही हूँ तो हम कार्डियोवैस्कुलर में आते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की बात अगर हम करते हैं और हम अगर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो सबसे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की बात करते हैं। उसके लिए आपने बहुत से स्पीकर से फिट फॉर्मूला सुना होगा, FITT। मैंने उसमें ED और लगा दिया क्योंकि मैं फार्मूलाज में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। तो उसमें मैं सभी को नमस्कार कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो मेरे जानकार भी हैं, और पैफी के सारे जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार। अब हम बात कर रहे हैं फिट की, फिटेड। फॉर्मूला जो है F से हो गया फ्रीक्वेंसी, कि आप जो
वर्कआउट करना है कितनी बार करना है, स्पीड वर्क कितनी बार करना है, लॉन्ग रन कितनी बार करना है, आपने फाटलेग कितनी बार करना है, जिमिंग कितनी बार करना है, तो ये सब फ्रिक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। कितने दिन करना है, हाउ मेनी डेज, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इंटेंसिटी, हमें किस स्पीड से करना है, क्या स्पीड रहेगी तो हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर रोज 10 किलोमीटर जा रहा है, सेम स्पीड पे जा रहा है, तो उसकी तो इम्प्रूवमेंट होगी नहीं। तो बिगनर्स के लिए डिफरेंट होगा, मीडियोकर के लिए डिफरेंट होगा, और जो परफॉर्मेंस लेवल के हैं लिए उनके लिए डिफरेंट होगा। और स्पीड को जब हम धीरे 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 अपनी फास्टर, पहले फास्ट फिर फास्टर ऐसे बढ़ाते जाएंगे और टाइम को घटाते जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। ये प्रिस्क्रिप्शन देना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एथलीट है, हमारा एथलीट बिगनर है या मीडियोकर है या परफॉर्मेंस लेवल पे है। अब परफॉर्मेंस लेवल पे मैं एलीट नहीं, मैं लाइफस्टाइल रनर्स जो परफॉर्मेंस लेवल पे आते हैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर आता है टाइम ऑफ द एक्टिविटी। अब आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अपने खिलाड़ी से बता रहे हैं कि कौन से टाइम में करना है, और वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या हाउस वाइफ है, और आप उससे कहें कि नहीं सुबह ही करना है। अब उसको सुबह टाइम ही नहीं है तो कहाँ से करेगा। तो आपको टाइम ऑफ द एक्टिविटी भी देखना होगा कि किस टाइम में वो करें। और फिर जो दूसरा टी आता है वो है टाइप ऑफ एक्टिविटी। जब हम प्रिस्क्रिप्शन किसी को दे रहे हों, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हों, तो हमें उसका इंटरेस्ट देखना होगा, फैसिलिटी है भी या नहीं। अगर वो कहता है मुझे तो स्विमिंग करनी है, पता चला स्विमिंग पूल जो है वो 10 किलोमीटर्स अवे है, तो आपने उसके अंदर वो इंटरेस्ट इनकलकेट करना होगा कि स्विमिंग के लिए तो आप सिर्फ संडे को जा पाओगे, लेकिन इन बीच में क्या और फिटनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हो, उसका प्रिस्क्रिप्शन देना होगा। फिर आता है आपका टेक्निक, वो तो आपको सिखानी है उनको। टेक्निक में कोच का सपोर्ट, दूसरे कोचेस का सपोर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का सपोर्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का सपोर्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स की एडवाइस, ये सारा कुछ आप लेके और टेक्निक स्किल्स जो भी सिखाना है उसको सिखाएंगे। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है जब हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं जो मैंने इसमें जोड़ा है ई और डी, एथिक्स एंड एनर्जी लेवल। ई से एथिक्स भी मान लो और एनर्जी लेवल भी मान लो। तो जब हम ई से एथिक्स की बात करते हैं तो फिर वही बात करूंगी मैं कि हमें खुद को भी और अपने स्टूडेंट को भी किस किस से, डोपिंग से, एज फ्रॉड से, चीटिंग से, शॉर्टकट से दूर रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया एथिक्स की बात। अब आ जाती है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेगा? एक तो सेल्फ, हम अपना एनर्जी लेवल बढ़ा के रखें। जो कोच है वो कोचिंग देने के लिए मेरी क्लास में, मेरे क्लब में एक मेरी रनर कहती है, वो हाउस वाइफ है, यंग मदर है, और उसका कहना है कि बस आके सुनीता मैम के हाथों में अपने आप को सुपुर्द कर दो और उसके बाद आप हवा से बातें करने लगते हो। तो क्योंकि मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कोचिंग देने के लिए, तो मैं अपने खिलाड़ियों को भी मोटिवेट करती हूँ। इसी तरह से कोच को हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए, उसका एनर्जी लेवल इतना हाई होना चाहिए कि जो सामने जिसको वो सिखा रहा है उसको लगे अरे सर इतना, मैडम इतनी एनर्जेटिक है तो हमें भी होना है। तो ये सेल्फ एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। सेल्फ के साथ साथ पीयर ग्रुप, उसका अगर आपका वो स्टूडेंट है, अगर स्कूल का है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरह के पीयर ग्रुप में रह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीयर ग्रुप उसका ऐसा है, उसके फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो उसको इस स्पोर्टिंग एक्टिविटी से दूर लेके जा रहे हैं, तो ये आपको उसको एडवाइस करना है। और हम अगर स्कूल और कॉलेज में नहीं हैं और वैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो हमेशा लाइक माइंडेड स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ रहना है। जैसा गेम हम खेल रहे हैं, अब मैं अगर रनिंग की बात कर रही हूँ, तो हमें ऐसा पीयर ग्रुप बना के रखना होगा जो सब रनिंग को प्यार करते हों, रनिंग करना चाहते हों। मैंने जब अपने रनर्स जोड़े थे अपने साथ और मैं मैराथन की इंटरनेशनल ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने अपने रनर्स को साफ बोला हुआ था, देखो भाई, लोधी गार्डन या नेहरू स्टेडियम आ गए सुबह 5 बजे तो ठीक, नहीं आ रहे हो तो फ़ोन मत करना, फ़ोन बिल्कुल नहीं करना। और लोधी गार्डन में किसी के लिए कोई भी वेट नहीं करेगा, जो जिस वक्त आ जाएगा वो उस समय अपना ट्रेनिंग शुरू कर देगा। हम मैराथन रनर्स थे तो हमें 3-4 किलोमीटर वार्म अप के करने होते थे, तो साफ हिदायत दे देती थी मैं कि अगर किसी ने नहीं आना है, कोई भी प्रॉब्लम है, सुबह मिस कर रहे हो वर्कआउट, तो प्लीज़ 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 फ़ोन मत करना। क्यों? क्योंकि जब एक
हम ग्रुप में कर रहे हैं, एक नहीं आ रहा है तो दूसरा भी आलस में आ जाता है, क्योंकि सुबह रजाई छोड़ के या बिस्तर छोड़ के उठ के आना रनिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। हाँ, पहुंच गए हो तो कॉल कर सकते हो कि पहुंच गए, ठीक है। तो ये एक हो गया, और एक हो गया फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का एनर्जी लेवल। बच्चे ने जीता कुछ तो फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, अरे वाह वेरी गुड, उसका मेडल देख के उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। तो जब वो उसको कहीं जाना है, वो थक के आया है तो उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही है। तो ऐसे अगर फैमिली करती है तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। उनके पेरेंट्स से बात करनी है, उनके पेरेंट्स को बताना है कि भाई ये बड़ा टैलेंटेड बच्चा है और इसको मैं अब थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो अब इसको आपने ऐसे ऐसे करके हैंडल करना है। ये कभी कभी थका हुआ होगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको आपने ऐसे हैंडल करना है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। फिटनेस में है तो ड्यूरेशन क्या होगा, 30 to 45 मिनट्स का ड्यूरेशन बहुत बढ़िया होता है। अब कई लोग कहते हैं मैं 1 घंटे वॉक करता हूँ या 1.5 घंटे वॉक करता हूँ और सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहा हूँ। तो सिर्फ फिटनेस के लिए तो 45 मिनट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर वेट लॉस करना है तो आपको 1 से सवा घंटे करना पड़ेगा फिटनेस में भी। फिटनेस में ड्यूरेशन तब बढ़ानी होगी जब आपको वेट लॉस करना है। दूसरा, अगर सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम 3 बार तो ज़रूर करना होगा वीक में, और मैक्सिमम आप 5 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लाइफस्टाइल रनर बनते हैं, लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं और आपने कंपटीशन में भी जाना है, तो आपका वही 45 मिनट्स 2 आवर्स तक जा सकता है, और 6 टाइम्स अ वीक करना हो सकता है, या मैक्सिमम 8 टाइम्स अ वीक। और आप अगर हाई परफॉर्मेंस लेवल पे पहुंच गए तब तो वीक में 7 डेज होते हैं, यानी कि 14 वर्कआउट्स किए जा सकते हैं। तो उसमें से 11 वर्कआउट्स तो बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी लॉन्ग रन के बाद एक रेस्ट होता ही होता है, एक्टिव रेस्ट, और 2 जब भी बॉडी न चल रही हो तो उस वक्त रेस्ट दे देना चाहिए, एक्टिव रेस्ट। तो इस तरह से करके आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी भी डिसाइड करनी होती है। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड जो पॉइंट है, ये तो पूरा कार्डियोवास्कुलर का था, उसमें ट्रेनिंग के फिटेड फार्मूला हो गया। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए सब ने बहुत बताया है और सब जानते भी हैं कि योगा इज़ द बेस्ट स्ट्रेचिंग फॉर्म। देन कम्स मस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो जो हम अगर मैराथन रनर्स की बात करें तो आपको लोकल मस्कुलर फटीग के लिए लॉन्ग रन करने बहुत ज़रूरी हैं, वंस इन अ वीक और वंस इन 10 डेज। 32 किलोमीटर्स आइडियल होता है मैराथन रनर के लिए, फुल मैराथन रनर के लिए। 21 किलोमीटर्स आइडियल होता है हाफ मैराथन रनर के लिए, और 10 किलोमीटर वाले के लिए 10 to 15 किलोमीटर का लॉन्ग रन काफ़ी होता है। आप अगर 42 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉन्ग रन भी 42 किलोमीटर करने की ज़रूरत नहीं है। जो एलीट क्लास में हैं, बिल्कुल जिनको ओलंपिक्स में जाना है, उनका वर्कआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं अभी बात कर रही हूँ लाइफस्टाइल रनर्स की, कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें। तो आप अगर 32 से 35 किलोमीटर्स तक कर रहे हैं लॉन्ग रन, उससे ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है। उसके बाद तो लोकल मस्कुलर फटीग तो बॉडी सीख जाती है 35 किलोमीटर में। जो हमारे लास्ट के 5 किलोमीटर्स होते हैं 37 से लेके 42 किलोमीटर के, उस समय जो बॉडी है वो तो सबकी थक जाती है। वी जस्ट रन विद आवर माइंड। तो मेंटल टफनेस जिसकी जितनी अच्छी होगी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाता है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए आप डायनेमिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारी फ्री वेट्स के हैं वो कर सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, मशीन्स के साथ में कर सकते हैं, मल्टी जिम जो होता है, और सैंड रनिंग कर सकते हैं, हिल रनिंग कर सकते हैं, रैंप रनिंग कर सकते हैं, स्टेयर रनिंग कर सकते हैं। जैसे आजकल हम कोविड-19 में क्वारंटाइन पीरियड में, और ये कहना चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड में फंसे हुए हैं, तो अपने कार्डियोवैस्कुलर को बरकरार रखने के लिए मैराथन रनर्स के लिए स्टेयर रनिंग, स्किपिंग बेस्ट है। स्टेयर रनिंग तो दी बेस्ट है। आप फास्ट ऊपर जाएं और स्लो नीचे आएं। ऐसे अगर आप 1 से 1.5 घंटा कर रहे हैं तो आपकी मैराथन की फिटनेस बरकरार रहेगी। फिर आता है बॉडी कॉम्पोजिशन, जिसमें फैट परसेंटेज जो जितना हैवी है वो, ये मैराथन परफॉर्मेंस में तो वेट बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन है अगर आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है। हम अगर किलो में बात करें तो आपको 1 किलो बॉडी फैट ज़्यादा होने से 10 किलोमीटर में आप 1 मिनट
स्लो हो जाते हैं। 1 किलो ज़्यादा होने से बॉडी वेट हाफ मैराथन में 2 मिनट स्लो हो जाते हैं और फुल मैराथन में 4 मिनट स्लो हो जाते हैं। और ये बहुत ही कैलकुलेटिव है, वेरी वेरी अर्थमेटिक। सो slowly you have to cut down your body fat percentage to improve your timing, provided you are doing proper scientific training. ये नहीं कि बस वेट कम कर लिया, आप पतले दुबले हो गए तो अब हमारा टाइम इंप्रूव हो जाएगा, उसके साथ में ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। तो ये हो गई बात हमारी साइंटिफिक अप्रोच कह लो, प्रिस्क्रिप्शन कह लो इसकी। अब लास्ट के कुछ मिनट में अब मैं क्वेश्चंस लेने भी शुरू करूंगी, क्योंकि बहुत देर तक बोल ली हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन लूँगी तो उसमें बेस्ट तो ये रहेगा कि इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, मेरे पास भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिस पे मैं बात कर पाऊँगी। तो अब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें। है हमारे पास में काफ़ी हैं, 20 मिनट्स हैं, लेकिन अच्छा है कि अब हम इंटरैक्टिव में आ जाएं और बहुत से जने जुड़े हुए हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। प्लीज़ 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 आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, जिससे कि ये ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन हो सके। जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या लिख रहे हैं, तब तक मैं बता दूं कि 92 में जब मैं एशियन चैंपियन बनी तो 94 में मैंने अपनी संस्था हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट रजिस्टर की, और हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट के थ्रू मैं स्पोर्ट्स प्रमोशन रन्स के थ्रू करती हूँ। एक रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है जो 26 जून को है, इस बार शायद ना हो पाए, उसका हमको स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी बिकॉज ऑफ कोविड-19। और सोशल इश्यूज़ पे काम करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ, सेमिनार्स करती हूँ। पैफी के साथ में डे 1 से जुड़ी हुई हूँ। और एक मेरी स्लम की ताइक्वांडो एकेडमी है जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, जिसमें हमारी लड़कियों ने जो 35 ब्लैक बेल्ट ट्रेनर्स हैं उन्होंने 17,000 गर्ल्स को ट्रेन किया हुआ है। एमसीडी की हिट शाउट एंड रन प्रोजेक्ट था, वो एक गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था जिसमें हमने 17,000 गर्ल्स को कवर किया। और इसके अलावा मैं एलीट एथलीट मैनेजमेंट करती हूँ, एलीट रनर्स कोऑर्डिनेटर हूँ मैराथन की, और एक अपना यहाँ पर जो दिल्ली स्केचर्स गो रन क्लब की एडमिन भी हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ। ये सब तो मैं अपने हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की तरफ से करती हूँ। और अगर मैं नॉमिनेशन की बात करूँ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी दिल्ली गवर्नमेंट की मेंबर हूँ, स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर स्टील मिनिस्ट्री की मेंबर हूँ, और डॉक्टर जीपी गौतम जो पैफी के भी फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने मुझे अमेठी में जोड़ा था फिजिकल एजुकेशन कमेटी में, और डॉक्टर पीयूष ने मुझे इसमें पैफी में जोड़ा हुआ है। और डे 1 से जहाँ ये लोग कहते हैं मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, कभी मैराथन्स में, कभी वर्कशॉप्स में, जहाँ मैं खुद भी जाना चाहती हूँ। पैफी के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं तो उनमें मैं जाती हूँ, उनको ज्वाइन करती हूँ। सभी का वॉचिंग आ रहा है, लेकिन मुझे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया है। या तो आप बस सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन पूछो तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड आफ्टरनून तो सभी के साथ हो गया। और अब मेरे जो फ्यूचर प्लानिंग है, क्योंकि पैफी एनएसपीसी आपको पता ही है कि नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई हो गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो मैंने पैफी को पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आई वांट टू ओपन पैफी रनिंग एकेडमी। मैं क्लब तो चला ही रही हूँ, तो क्यों ना पैफी रनिंग एकेडमी चलाऊँ, एक्सक्लूसिव पैफी रनिंग एकेडमी। एंड पैफी का साउथ दिल्ली का चैप्टर खोलना चाहती हूँ, जो मैं पैफी के अंडर गाइडेंस जैसे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके तहत करना चाहूँगी। तो आप सब जुड़िए। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं ट्रेनिंग की टिप्स देती रहती हूँ। हाँ, मैं कैसे मोटिवेट करती हूँ अपने खिलाड़ियों को वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत से मेरे खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं। एक तो ये कोविड-19 जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने उनको ये बोलना शुरू किया कि अपने अपने एक्सरसाइज के वीडियोस भेजो। मैं उनको टिप्स देती थी, जो भी करती थी। अब वो क्या कर रहे हैं इसके भेजो। जो गलत कर रहे होते थे उनको पॉइंट आउट करती थी, और जो सही वीडियोस होते थे उनका मैं अपने इंस्ट्रक्शंस के साथ में वीडियो बना के सुनीता गोदारा यूट्यूब चैनल पे डालती थी, अपने फेसबुक पे डालती थी, सबको शेयर करती थी। तो इस तरह से उनको पूरे टाइम मोटिवेट करती रही हूँ। और कमाल की बात यह है कि जो मेरे क्लब के रनर्स हैं और बाकी भी जो मेरे क्लब में नहीं हैं, जिनको भी मैं फेसबुक पे देखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा
उनकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि यही दो चीज़ें थीं जो हम इस लॉकडाउन पीरियड में इम्प्रूव कर सकते थे। मैंने तो शुरू में जो इंजर्ड थे उनसे यही कहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये इंजरी का टाइम जो तुमको लॉकडाउन में मिल गया है, इसमें अपनी इंजरी को अपना नर्स करो और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को नर्चर करो। तो इस तरह से उनको मैं मोटिवेट करती हूँ। फेसबुक लाइव भी आना शुरू किया, थैंक्स टू पैफी जिसने मुझे ये मौका दिया। और अब लास्ट के 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशंस हो जाएं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो क्यों नहीं अब भाई कोई बहुत ही स्पोर्ट्स साइंस वाला वैसा वाला क्वेश्चन तो मत पूछना, लेकिन अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे रनिंग के तहत, मैं एक जॉगर टर्न मैराथनर थी, और उसके बाद मैराथन करते करते एक फिटनेस लेवल की मैराथन करते करते जब मैं नेशनल मैराथन चैम्पियनशिप मैंने जीती, इंडियन ओपन मैराथन जीती, तो मुझे बॉस्टन मैराथन भेजा गया। जब मैंने वहाँ देखा 1000 फीमेल, और हमारे हिंदुस्तान में 1984 में सिर्फ 4 या 5 फुल मैराथन करने वाली लड़कियाँ, तो मुझे लगा बाय गॉड। तब बस मैंने देखा वो सब अपना वॉच देख रही हैं, टाइम के लिए करती हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी टाइम के लिए दौड़ना शुरू करूँ। तो 85 में जब मैं वापस आई तो मैंने इंडियन जितनी मैराथन्स होती थी उसमें तो मैंने सोच लिया कि विन करना है, लेकिन तब तक भी मैं लाइफस्टाइल रनर ही थी, कोई साइंटिफिक अप्रोच मेरे पीछे नहीं लगी हुई थी। तो उसके बाद एशियन लेवल तक पहुंचना, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, तो एनीवे, अगर मैं इतना क्लियर हो गया, मैंने जो भी कुछ आपसे बात की है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। मेंटल टफनेस की हम बात करें तो पॉजिटिव एफर्मेशंस और मेडिटेशन और योगा, ये सब पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल होना चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस तो रोज़ होने चाहिए। मैं तो अपने क्लब में हार्ड वर्कआउट कराने के बाद, क्योंकि मैं 2 दिन आते हैं मेरे रनर्स, तो उनको मैं स्पीड ट्रेनिंग पे फोकस करती हूँ और उसके बाद बढ़िया सी योग निद्रा कराती हूँ पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ, एंड दे डू लाइक इट। और बताइए आप, ठीक है मैं नाम लेना शुरू करूं तो सुदीप, ओके, सुरिंदर सिंह, वंदना यादव, करना सिंह, सुदीप्ता घोष, और भी बहुत से लोग होंगे। मैं स्क्रीन को टच इसलिए नहीं करना चाहती कि कहीं कुछ भी गलत प्रेस ना हो जाए। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे पास में अभी 15 मिनट हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, और पैफी क्वेश्चंस को रिपीट भी कर सकते हैं अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस को रिपीट कर दें तो। नहीं, तो मैं अपनी कुछ जर्नी बताऊं कुछ मैराथन्स की, शायद वो लेसन्स होंगे रनर्स के लिए। सबसे पहले तो जब एशियन मैराथन करने गई तो मैंने कैसे उसको विन किया। ट्रेनिंग पूरी थी, कैलकुलेशन पूरा था, मुझे पता था कि मैं 245 की फिटनेस से जा रही हूँ। मैं 92 की बात कर रही हूँ, अभी तो 235 की फिटनेस से जाना होगा, तब जाके आप एशियन मैराथन विन कर सकते हैं। तो उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं जब 245 की फिटनेस की मैराथन करती थी, और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो इंडोनेशिया में एशियन मैराथन थी जकार्ता में, और 92 की बात कर रही हूँ मैं। और जो वहाँ की बेस्ट रनर थी लवालता, जिसको मैंने जून में बीट किया था, और वो ये जो मैराथन थी ये अक्टूबर में थी, 4 अक्टूबर को। तो वो उसके साथ में पेसर्स थे, क्योंकि वो उसकी अपनी कंट्री थी, अपनी सिटी थी, तो वो अपने पेसर्स के साथ जा रही थी। 35 किलोमीटर्स में उसने मुझे लीड किया। और बहुत खुशी के साथ मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि मेरी एशियन मैराथन में डॉक्टर जीपी गौतम मेरे मैनेजर के तौर पे गए थे, और उनसे मुझे बहुत प्यार मिला। उन्होंने ही मुझे डॉक्टर पीयूष से मिलाया, उन्होंने ही मुझे पैफी से इंट्रोड्यूस किया है। तो डॉक्टर जीपी गौतम उस समय जीप में थे, अब नहीं अलाउड होता है ऐसा, लेकिन उस समय मैनेजर को अलाउड था। इंडिया का मैनेजर है भाई, इतनी बड़ी कंट्री का मैनेजर है, उन्होंने जुगाड़ किया, उनको अलाउ किया, तो वो मेरे आगे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि पीछे वाली कितना पीछे है, अब वो थे बैडमिंटन के, इतने एक्साइट हो गए थे मुझे सबसे आगे देख के, कहते हैं 100 किलोमीटर्स। इतना गुस्सा आया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैंने देखा वो 100 मीटर पीछे थी।
और उसने एकदम से मुझे क्रॉस किया, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। 35 किलोमीटर्स पे जब उसने मुझे क्रॉस किया, या 28 किलोमीटर्स पे किया था, और फिर मैंने उसको पहले कोप अप किया उसकी स्पीड को, और उसके बाद 37 किलोमीटर्स पे जब मैं निकली हूँ, तो इसको कहते हैं मैराथन में भी स्ट्रेटेजी होती है। 400 मीटर 800 मीटर में तो आप रनर्स को स्ट्रेटेजी बताते ही होंगे, लेकिन हम मैराथन में भी टैक्टिक्स करते हैं। जब मैं निकली 37 किलोमीटर्स में, तो मैं उसकी तरफ देख के मैंने मुस्कुराते हुए बोला, बका लवालता, यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम गोइंग, है ना। तो उसको लगा कि माई गॉड, she has already beaten me in June in Penang International Marathon, Malaysia, and now she's so fresh at the 37 kilometers. उसका मोरल थोड़ा डाउन हो गया, तो मेंटली मैंने थोड़ा सा उसको अपसेट कर दिया, और 100 मीटर की स्पीड लगा के उसके बाद अपनी ब्रेथ को कंट्रोल किया, और उसके बाद पेस को मेंटेन किया, और मैं विन कर गई। ऐसे ही क्या हुआ था मलेशियन पेनांग इंटरनेशनल मैराथन में, जब पहली बार मैंने लेस्ली वेटसन-कोथ, who was at that time 10 minutes faster than me, and Guinness Book of Record holder, 200 marathons experience. I had only 10-15 marathons experience at that time, and she was with me. So she's because she's from Britain, so I knew that she cannot cope up with the heat. So I pushed my pace from the beginning itself. 7 kilometers we were running together, and when she started asking about ice cubes, I knew that she can't take up this humidity and heat, and I pushed the pace little, and at the end, when people asked her, you were the favorite one, and how Sunita Godara from India beat you, she said, I miscalculated. I thought at the end I will catch her, but she can beat the heat. So that time I was famous as Indian marathon champion who can beat the heat, and Malaysian marathon queen. So it was a nice journey for me for 15 to 20 years of international running. क्वेश्चन आइए, अब मैं आप क्वेश्चंस के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। टाइम तो बस 10 मिनट बाकी है। चलिए वेव कर दीजिए, देखें कितने लोग हैं इस वक्त मेरे साथ। आप वेव कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग हैं और कितनों ने मुझे सुना। आई होप आपको मेरी ये बड़े दिल की भाषा पसंद आई होगी। तो बस मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर लाइफ में हमने वैल्यूज़ का फॉर्मूला रखा, अगर हमने लर्न का फॉर्मूला रखा अपने लाइफ में, तो हम फिट भी रहेंगे और एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी रहेंगे। और फिर एंड में जो फॉर्मूला है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग, जीवन में बहुत सारा प्यार और अपमान पीने की शक्ति हो, तो कोई हमें रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। तो ये है मेरी मैराथन की कहानी, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड की कहानी, और जिस तरह से मैंने अपने फैट परसेंटेज को कंट्रोल किया। तो आई वॉज बॉर्न फैट, सो मेरे लिए हमेशा डाइट कंट्रोल इज़ अ तपस्या। बट कैलोरी काउंटिंग, जितना कैलोरी इंटेक और कैलोरी कंजम्पशन में आप फ़र्क करके रखेंगे, कैलोरी इंटेक कम करेंगे और कैलोरी कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा ही होगा। उसके साथ में आप ट्रेनिंग अच्छी करेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे। लिसन टू योर बॉडी, बी हैप्पी। ओके, अभी मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो सिर्फ वॉच कर रहे हैं। इन्हीं में से अगर कुछ क्वेश्चंस भी देने लगें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर क्वेश्चंस भी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इंतज़ार करें, एक दो क्वेश्चन भी आएंगे तो फिर उसके बाद में सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने अगर क्वेश्चन पूछने हैं, नहीं तो ठीक है। चलिए मैं एक बताती हूँ। मुझे एक बार यहाँ पर जो बहुत कम इंजरीज़ हुई हैं वैसे मेरी लाइफ में, लेकिन जो इंजरीज़ हुई हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक बार मुझे एचलिस टेंडन हो गया, टेंडनाइटिस हो गया, और जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची और मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये इसके लिए अब मुझे क्या करना है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आई एम अ वेरी गुड लिसनर,
और मैं एडवाइस तो बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा टेंडन स्ट्रेचिंग करती हो? कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, कोई बताने वाला भी नहीं था। अब तो बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं। मैंने कहा नहीं। इतनी डांट लगाई मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर ने नेहरू स्टेडियम में, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। बल्कि उसके बाद आज का दिन है कि जब भी रनिंग करते हैं टेंडन स्ट्रेचिंग ज़रूर करते हैं और अपने रनर्स को ज़रूर बताते हैं। इसी तरह से एक बार क्या हुआ था, हीट स्ट्रोक हो गया था। एक बार हमने मैराथन में पानी नहीं पिया था तो उससे वाटर लॉस हो गया था और उससे फिर हम फेंट भी हो गए थे। तो पानी पीना कितना ज़रूरी है मैराथन में, ये हर रनर को सोच लेना चाहिए। अगर आपने पहले 5 किलोमीटर का वाटर पॉइंट मिस किया क्योंकि उस समय तक प्यास नहीं लगी होती है, तो आपने पहली मिस्टेक कर दी। सेकेंड वाटर पॉइंट आपको मिलेगा 5 किलोमीटर पे, वहाँ पर नहीं पिया तो फिर आपने सेकेंड मिस्टेक कर दी। और जब 7 किलोमीटर्स में पानी मिलेगा और आपने नहीं पिया, या 10 किलोमीटर्स में, तो आपने पूरी मिस्टेक कर दी। फिर आपकी बॉडी स्लो होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि वही एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट बॉडी विल स्लो डाउन। तो इसलिए वाटर इज़, हम कहते हैं पानी अमृत है, वाटर इज़ लाइक अ मेडिसिन। हाँ, एक और बात है कि अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हैं। हमारे ज़माने में ये गैटोरेट वगैरह बहुत बाद में शुरू हुए, इंडिया में तो आए ही नहीं थे। मैं जब बर्लिन मैराथन में गई थी तब मुझे गैटोरेट मिला था। मतलब 90s वगैरह में जब मैं इंटरनेशनल में जाने लगी थी तब मुझे ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स से इंट्रोड्यूस हुई थी। एमवे से इंट्रोड्यूस हुई थी और सप्लीमेंट से इंट्रोड्यूस हुई थी, न्यूट्रलाइट्स से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसमें अब तो यहाँ पर भी बहुत हैं, एंश्योर है, श्योर के हैं, वेस्टीज के हैं, मतलब बहुत से, और अपने जेनरिक भी कम नहीं है। तो अब तो बहुत से सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, विटामिन आ गए हैं। लेकिन जितना सात्विक खाना हम खाएंगे, जितना पौष्टिक खाना हम नेचुरल खा सकते हैं, जैसे फाइबर्स खूब खाएं, जूस से बेटर है कि आप फ्रूट्स खाएं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तक किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मैराथन, बिफोर मैराथन डाइट, मैं जो वर्कशॉप्स देती हूँ ना, उसमें 2 days बिफोर क्या करना चाहिए, उससे भी बहुतों को फ़र्क पड़ता है। अब अगर मैराथन रनर्स ने ज्वाइन किया हुआ है तो पूछ लो। नहीं तो मैं जो एक और बात बता रही थी, मेरा एक बार ऑर्थोस्कोपी ऑपरेशन हुआ, अब एक बार स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। तो क्यों हुआ? अगर आप वैसा करते हो अपनी लाइफ में तो आपको मैं अलर्ट कर रही हूँ। जब मेरा नेशनल मैराथन में विन किया मैंने 1984 में, कोई बताने वाला तो था नहीं, तो बहुत एक्साइट हो गए। बॉस्टन मैराथन के लिए सिलेक्शन हो गया है, इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो डेली 15 किलोमीटर्स रोड पे रनिंग करनी शुरू की। आईआईटी से, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल से शुरू करती थी और राष्ट्रपति भवन को टच करके ही आना है, ये हमने नियम बना लिया था। और उसके बाद पता तो चला नहीं, यंग थे, कोप अप कर गए। लेकिन जब हम बॉस्टन मैराथन में गए और बॉस्टन मैराथन में फिनिश करते हुए लास्ट के 5 किलोमीटर्स, आई वॉज रनिंग इन द पेन। वो तो अच्छी बात है कि वहाँ का क्राउड जो था, गो इंडिया सुन के तो हमने फिनिश तो कर ली, बट आई कोलैप्स्ड एंड आई गॉट अ स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रोड रनिंग इज़, everyday road running is bad, and with cushioning shoes is better. And for cushioning shoes I must tell you, आज के रनर्स में सीधे शोरूम में जाएंगे और कहेंगे कि आई एम अ मैराथन रनर, आई वांट वेरी गुड शूज़। तो वो जो शोरूम वाला है वो क्या करेगा, आपको ज़ीरो भी शूज़ दिखा देगा, लाइट वेट, ओ यू विल रन वेरी फास्ट, ग्रिप इज़ वेरी गुड। लेकिन वो लाइट वेट शूज़ जो होंगे वो रेसिंग शूज़ होते हैं। जैसे ट्रैक में स्पाइक्स होते हैं, ऐसे ही हमारे मैराथन में रेसिंग शूज़ होते हैं। तो प्लीज़, अगर आप 1 hour 15 मिनट से, मैन 1 hour 15 मिनट से फास्ट नहीं है हाफ मैराथन में, और मैराथन में 3 hours से फास्ट नहीं है, तो आपको रेसिंग शूज़ पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुशनिंग शूज़ ही पहनने चाहिए, क्योंकि लॉन्गर पीरियड अगर आप जारिंग इम्पैक्ट करते हैं तो वो जारिंग इम्पैक्ट आपका 3 times ऑफ योर बॉडी वेट, दैट पाउंडिंग जारिंग इम्पैक्ट गोज ऑन योर नीज। तो उससे बचने के लिए आपको कुशनिंग शूज़ पहनने ही चाहिए। फिर क्या हुआ कि अब ओवर ट्रेनिंग, हमारे मैराथन में एक ओवर ट्रेनिंग का प्रॉब्लम तो खैर हो ही जाता है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, एलीट लेवल पे जाते हो, तो एक्स्ट्रा माइलेज करना पड़ता है, और उसके चक्कर में
कार्टिलेज डैमेज होते हैं तो हमारा भी एक ऑर्थोस्कोपी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ऑर्थोस्कोपी ऑपरेशन हुआ था 91 में और 92 में मैंने एशियन मैराथन जीती। ऑर्थोस्कोपी ऑपरेशन के बाद भी सक्सेसफुल लाइफ होती है अगर आपने डॉक्टर की एडवाइस को ठीक से माना है। और डॉक्टर ने मुझे 30 डिग्री एंगल के कुछ जिम एक्सरसाइज बताई थी मल्टी जिम में, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस 30 डिग्री एंगल पे, और वो मैं रिलीजियसली एवरी डे जाके 15 मिनट्स के लिए वो एक्सरसाइज ज़रूर करती थी। और उसके बाद जिम की पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने जो बोला था वो ज़रूर करना था। वो करने से मुझे उसके बाद मैंने शायद 50-55 मैराथन्स और की, लेकिन मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नी में मैराथन करते हुए। तो इस तरह से अगर हम स्पोर्ट्स साइंस डॉक्टर्स की सुनेंगे, अपने कोचेस की ठीक से सुनेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। बस 10 बजने वाले हैं, लास्ट 5 मिनट्स हैं। लास्ट 5 मिनट्स अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, और अगर शुरू में आपने क्वेश्चन पूछे होंगे तो भाई वेरी सॉरी, क्योंकि शुरू में मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आप लास्ट में क्वेश्चन पूछें तो ठीक है। बहुत बहुत नमस्कार आपको, और पैफी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू पैफी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकी और लाइव इनके पेज पे आई हूँ। अभी भी आप देखते रहिए, बहुत से स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आने वाले हैं, शाम को 5 से 6 में भी आने वाले हैं, और कल सुबह 1 बजे फिर आने वाले हैं। तो इनको देखते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। किसी तरह से ये लॉकडाउन पीरियड निकल जाएगा, और जब ख़त्म भी हो जाएगा, अभी तो वैसे दिल्ली में बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ भी हैं आप, जहाँ पर भी आपका ग्रीन जोन ज़्यादा है और आपको अलाउ किया जा रहा है, वहाँ पर आप इस लॉकडाउन पीरियड के बाद भी प्रिकॉशंस पूरे लें। एकदम से ग्रुपिंग ना शुरू करें, थोड़ा सा क्वारंटाइन स्टाइल डिस्टेंसिंग रखें। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, सोशल कनेक्टिंग की बात तो मना ही नहीं है ना। तो ऐसे हम सोशल कनेक्ट रहेंगे, और कुछ महीने और ग्रुपिंग को अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं अर्ली मॉर्निंग कर देंगे, जिस समय तक लोग नहीं आए हैं उस समय तक कर देंगे। रनर्स तो अगर 5 बजे जाएंगे बाहर तो ठीक रहेगा। तो हमें पूरे गवर्नमेंट की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करते हुए क्वारंटाइन पीरियड के बाद भी, लॉकडाउन पीरियड के बाद भी प्रिकॉशंस लेने हैं। मास्क ज़रूर पहनना है, और फिट रहना है। बहुत इस 2 महीने में बहुत कुछ बदल गया है, तो अपने आप को इंटरनेट सेवी करके बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑनलाइन शुरू करनी है जो हम पहले नहीं करते थे, अब हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हमारे ट्रेनिंग मेथड्स भी अगर ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे तो ऐसी कोई भी विपदा नेक्स्ट भी कभी भी आएगी तो वी विल बी सेफ एंड इंटरनेट सेवी, एंड वी कैन स्टार्ट आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स online. So become internet savvy. This is the time period where you can learn things, enhance your knowledge, learn things which you don't know. जैसे मैं सच बताऊं, जूम मीटिंग पहले कभी नहीं करती थी, अब जूम मीटिंग शुरू हो गई है। वीडियो कॉलिंग और वीडियो लेसन्स अभी शुरू नहीं किए हैं, वीडियो कॉलिंग बस शुरू की है, लेकिन अब शायद वीडियो लेसन्स भी शुरू करने होंगे। बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हम पहले नहीं करते थे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। 10 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट बाकी हैं, और आप सब मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े। आशा है आपको मेरी बातों से मेरे फॉर्मूलाज तो ज़रूर पसंद आए होंगे, और आप इसका अमल करेंगे। वैल्यूज़ इन लाइफ, वैल्यूज़ इन स्पोर्ट्स, लर्न फॉर्मूला, और शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग, जीवन में बहुत सारा प्यार और अपमान पीने की शक्ति को हमेशा बरकरार रखेंगे। थैंक यू सो मच। पैफी अगर मुझे मैसेज दे दे तो मैं अपने इस FP लाइव सेशन को फिनिश करूं। पैफी की तरफ से अगर मुझे एक कमेंट आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शरद जी, आप अगर मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन अगर आया हो
मेरा फ़ोन नंबर है 8587852410। आई रिपीट 8587852410। मेरा ईमेल आईडी है sunitagodara@gmail.com। आप अपने क्वेश्चंस उस पर भी भेज सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम अपना क्लब शुरू करेंगे और रनिंग फिटनेस की तरफ फिर से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।